Ma'am, has session started? Not yet. Hello? Preeti ma'am, am I audible? Yes, ma'am. I Hello? guess session has not started yet, right? अभी मैडम आए हैं, अभी चालू होगा सेशन. Okay, okay. Thank you. Preeti madam, can I start? Yes, ma'am. Okay. All are there na? मैम 42 है. Should I wait? 5 minutes wait करते हैं. Okay, we can anytime. Yeah. Okay. That is related with the offline or online, and how to prepare for the lesson, how to deliver the lesson, and what post activity a teacher has to perform. Similarly, we have discussed about some issues related with the classroom management and organization of content. So now my next presentation will be basically based on another approach or another pedagogy for teaching and learning. That will be, you must have heard about the constructivist approach or constructivism. So this one of the way more enliven and involve the student in a very healthy manner in the teaching and learning process. So I just request to everyone, because you know when it is very difficult for me, I'm a seasoned teacher teaching in an offline mode for years, so I always believe a little bit interaction and expected some interaction from you. So आप सभी से मुझे थोड़ा सा interaction की hope है, and I hope that you will interact with me with through your, you have a chat box, so you can write some your messages if you are getting it or not, whether you need some changes or whatever you require, please write it on the chat box. If you have any questions in between also, you can send the message through the chat box, so that our lecture will be more interactive and we'll be focusing more on the basic concepts. So let me share my PPT with all of you, how this constructivist pedagogy works and what are the tenement related with the constructivist pedagogy. If you look at the syllabus of your, also some points are given related with the constructivist and critical pedagogy. So I want to focus on the constructivist pedagogy. So basically this constructivist pedagogy is related with the process of teaching and learning. It is basically a philosophy which works on the process of teaching and learning. So I'm not able to move my PPT. Preeti madam, I'm not able to move. Just once click on the center slide, first slide on the center, and then try to Okay. by arrow key. Fine. हो गया ma'am. हाँ. Yeah. Okay. So basically, if I talk about the constructivist pedagogy, the basic meaning is constructivism. Constructivism is a theory or philosophy of teaching and learning. So as I already told you in the morning, कि student doesn't want only lecturing. कोई भी छात्र हमसे केवल सुनना ही पसंद नहीं करता. If you involve your learner in the process of teaching learning, your teaching will be more effective and and the students learning will be much better. So if you look at the metaphor for teaching, teachers have
understand that they have a sphere of knowledge and they want to insert into the minds of their student. So basically this is one of the basic concept which every teacher thinks that they have a knowledge with them and they just want to put this collected knowledge which the teacher is having with him to be transmitted to the learner. Another important metaphor ki, like every knowledge we just want to pour. So traditionally teachers present knowledge to passive student who absorb it. No wonder students are often bored. This is given one of the very important message given by the Ulrich related with this present teaching and learning situation, where every time if you are working as an authoritarian or democratic or laissez-faire, but your mindset must be changed that you cannot pour knowledge to the student, or you cannot make learner to learn unless they involve themselves in the process of teaching and learning. So if before going understanding more on teaching, it is better to understand the learning. So what learning is? Learning is an active process in which learner construct their own meaning based on their prior knowledge and experiences. So इसके पहले तक whatever knowledge or experiences learner is already having, he will try to link that new knowledge with the previous one. This is a basic base of every learning, that you cannot learn anything in a novel way without linking with the previously learned concept. So previously learned concept के साथ new connection to the old knowledge to new knowledge is very important for learning, because the learner construct their own meaning based on their prior knowledge and experiences. So जिस तरीके का उनका prior knowledge है, जिस तरीके का उनका पुराना experiences है, उसी experience को, उसी knowledge को link करके ही वो नया knowledge को acquire कर पाते हैं, नए knowledge को understand कर पाते हैं. Now, if you look at the learning process को यदि हम समझने की कोशिश करें, तो it has 4 major steps. Experiencing something new, that is one of the. जब भी हम कोई नई चीज, I request to someone, please mute your mic. Someone has started the mic, please. So, learning process involves the 4 basic major steps, that is experiencing something new. एक बहुत सीधी सी एग्जांपल आपके साथ में कोट करना चाहूंगी कि जब आप सुबह, जैसे ही आज आपने इस दिन की शुरुआत की, तो आपके पास आप कौन कौन सी चीजों से कम अक्रॉस हो. इफ यू रिकॉल योर टुडेज कि आज आप लेक्चर में आने से पहले तक आपने कौन कौन सी एक्टिविटी करी, तो आप इफ यू इमेजिन दैट, तो आपको याद आएगा कि आपको रूटीन चीजें याद नहीं है, लेकिन कोई नॉवल चीज हुई होगी. हो सकता है कि आपको टाइम का कमी हो रही होगी और किसी ने बेल बजाई होगी आपके घर की, या आप अपने ऑफिस के लिए निकले होंगे और कोई सिग्नल बंद होगा. तो ये चीज हमको ज्यादा याद रहती है इंस्टेड ऑफ रूटीन चीजें. तो जब भी हम ब्रेन की लर्निंग की प्रोसेस की बात करते हैं, तो whenever a brain or whenever a person come across with a new something new, it always tries to appreciate and remember, understand this new experience. तो जो भी नया कोई एक्सपीरियंस हमारे सामने आता है, तो हम उस नए एक्सपीरियंस को ट्राई करते हैं समझने की और उसको अप्रिशिएट करने की. ना वो जो नया एक्सपीरियंस है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है, और जब भी हमसे कोई पूछता है या हम कभी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमको रिकॉल होता है. तो सिंपल सी लर्निंग प्रोसेस है कि जो हमारे रूटीन कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, लेकिन whenever we come across with any new idea, with any new concept, so automatically this new experience is always we try to understand, and it is stored in our memory, and whenever we require we recall it later. So when I asked you this question कि आपको सुबह से आज तक क्या क्या हुआ था, because we are not meeting face to face and I am not getting your answers, but जब भी आप इस तरीके का रिकॉल करते हैं, तो आपको याद आएगा कि आपको कौन सी चीज आप कि कुछ नया हुआ था, तो आप उसको इमीडिएटली रिकॉल कर पाते हैं. So in that way only we learn. So simple, and the 4 steps are there: experiencing something new, not the traditional, something new, something innovative, something different. Then we try to understand that, we store it, this information, and we retrieve it. Then basically learning means whatever the information you receive, it is reshaped inside the learner's mind to fit within his or her frame of reference. तो बहुत सिंपल सी बात है. एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दूं कि if I all of a sudden I say you a brinjal or I say mango, what happened? क्या हुआ?
I think that everybody must have, whenever I say brinjal, immediately आपके सामने बहुत सारी vegetables दिखाई देने लगती हैं और vegetables आपको याद आने लगती हैं. You immediately you say that vegetable. If I say mango, immediately you say that it is fruit. So what does it mean? It means that you have stored the information of mango in one category, that is category of a fruit. If you have stored this brinjal, information of brinjal relating with the category of vegetables. So whatever the new information comes in our mind, it is stored in a form of a category only. So what does it mean for a teacher? For this information, that whatever information you are providing to your learner, you must provide them in a categorized manner. You can't present the information in a haphazard manner. So that haphazard manner presented information cannot be restored by the learner and cannot be retrieved by the learner. So basic tenet of any learning is whatever information we receive, we reshaped this information in our mind and we fit it into our frame of reference, or whatever the previously earned information we have, we maintain in that. So this is one of the basic aspects related with learning that every teacher must know. So each of us generate rules to make sense of our experiences. Another important aspect, learning is adjusting our rules to accommodate new experiences. So adjusting our rules means whatever the information we have, we readjust and accommodate the new information. So student can learn different meaning from the same lesson, or student can acquire different meaning from the same concept. क्योंकि उनके जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस है, उनका जिस तरीके का प्रीवियसली गेन नॉलेज है, उसी नॉलेज के साथ वो लिंक करते हैं. इसीलिए एवरी टाइम व्हेनेवर आई से दैट कि व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू, यू हैव टू लिंक विद द प्रीवियस. वेरी सिंपल एस्पेक्ट इज कि व्हाई टू लिंक विद द प्रीवियस, बिकॉज जब आपको मालूम होगा कि स्टूडेंट के पास में जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नोन कॉन्सेप्ट है, वो नोन कॉन्सेप्ट के साथ अब अपना नया कॉन्सेप्ट को लिंक करके उसको समझाएंगे, तो इट इज वेरी ऑलवेज बेटर फॉर द लर्नर टू acquire the new information in a right direction. So every student can learn different meaning from the same lesson. This is one of the reason we have to always link the previously learned information, previous knowledge with the new one only. Now, in a simple way, I can say that no knowledge can be transmitted intact from one individual to another. एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक जब नॉलेज ट्रांसमिट होता है, या एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन तक नॉलेज ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिशन का लॉस बहुत सारी चीजों का हो जाता है. मतलब हमने जो लेसन बच्चों को सिखाया, वो यदि आप डायरेक्टली फेस टू फेस उनको सिखा रहे हैं और वही चीज एक बच्चा दूसरे बच्चे को आपसे सीख करके बता रहा है, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेस. इसीलिए आपने देखा होगा कि व्हेनेवर कोई भी एक इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर पास ऑन होती है, तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कहीं तो भी अलग हो जाती है और पास ऑन इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो जाती है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि नो नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड or transferred intact from one individual to another individual. The reason is that there is a transmission losses, and the reason for this transmission losses is the individual's perception, individual's experiences makes this transmission losses. So if you look at the philosophy of learning, so constructivism is a philosophy of learning founded on the premises that by reflecting on our own experiences, we color and construct our own understanding of the world we live. हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम जिस तरीके की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. The same thing happened with every learner. Whatever information you gave him, whatever the information is provided by you, the learner accepts the information, based on his own personal experiences or personal knowledge. So that's why every individual reflect on his own experiences, he color and construct his own understanding of the world in which he lives. So this is one of the basic philosophy of constructivism, which says that individuals' personal experiences, individuals' personal understanding is more important than the teacher's perception. Now, if I talk about the constructivism, it is a theory or philosophy about teaching and learning that supports the notion that learner must be independent thinker. That means
he should be a cognitive person, and he is a cognitive person who has their own independent thinking. He can create his own knowledge. He can understand in addition to knowing, expected to question and question. That is also one of the expectation from the constructivism. The child should answer should raise question and question to himself also and get his information. He should always be able to work in team. Learning is active and student centric process. Learning is evident of behavioral changes also. So whatever behavioral changes occur, that means you can understand that he is learning. So this is one of the basic tenement of a constructivism. Every individual, or this is in the process of teaching and learning, a teacher must understand that every learner is a independent thinker. He can create his own knowledge. He has understanding for addition to knowing the. He is expected to question and question to raise question. He should be able to work in team. He is very much conversant to work in team. Feel learning is active and always be a student centric process, and you can see the change in behavior of the learner and understand that he is learning something new concept. So according to the constructivist teaching, the sphere is created inside the mind of the student by creating a learning environment. That means you cannot pass on the information as it is to the learner unless you create a learning environment for the learner. बहुत सिंपल सी बात है कि हम केवल बिना लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट किए हम लर्नर को कोई भी नई चीज या कोई भी चीज नहीं सिखा सकते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द मेटाफॉर फॉर द नॉर्मल टीचिंग एंड द कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग. So if you look at the philosophical or historical predators of the constructivism, we have right from the Socrates philosophy to Jerome Bruner's and John Dewey's idea. So let's explore one by one how they feel and how they think as a constructivist about the teaching and learning process. So if you look at the Socrates ideology that I cannot teach anybody anything, I can only make them to think. That means without thinking, no teaching is possible. Who will think? Of course, the learner has to think. Teachers can't make children learn because children learn through the problem solving. One ideology उन्होंने ये कही थी, if you pose a problem before the learner, he will able to solve the problem and learn the new concept. That means a learner cannot actually learn the ready-made idea. He has to solve the problem and create and learn by their own way. So this is one of the tenement which is proposed by Socrates, and it is long before Christ. Then another one person, that is the Vico Gambestia. The thought of that, to know means to know how to make. That again, not just ready-made knowledge. When you create, you will be able to know. So getting away from memorization and recitation is also one of the tenement, one of the ideology which is given by the Vico. Next is the John Rousseau. That is he is one of the very important person who has proposed the idea of learning by doing, and teachers should present problem that stimulate curiosity and promote learning. So that Rousseau's ideology that a teacher has to create a platform for the learner. He has to pose a problem before the learner, and similarly teacher should stimulate curiosity amongst the learner. हम इस तरीके से प्रॉब्लम लर्नर के सामने प्रेजेंट करें कि उसमें क्यूरोसिटी जनरेट हो, और जब क्यूरोसिटी जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग भी प्रमोट होगी. दैट मीन्स बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने अपनी पहली क्लास में आपको बताया था कि हमको अपनी जो नया लर्निंग है उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की तरीके से कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज के साथ में प्रॉब्लम को अपनी नई जो थ्योरी है उसको प्रेजेंट करना है, इन्हें टू डेवलप क्यूरोसिटी अमंग्स द लर्नर. तो वही चीज जॉन रूसो भी प्रपोज कर रहे हैं. देन इफ यू लुक एट द जॉन डीवीज वर्क, तो एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ. सो द as per the John Dewey's idea, the inquiry-based learning is one of the very important aspect. Then teachers has to providers of tools, materials, appliances, and the role of teacher is to guide in the process of learning. Here they are not saying anything. The teacher's role is just the role of a mentor.
So this is also one of the very important educationist who is the historical predecessor of this constructivist ideology, that is the John Dewey. Another important is the Jerome Bruner. The Jerome Bruner was an American educationist and he proposes the theory of instruction, that is the predisposition is structured knowledge, sequence and praising and rewards plus punishment. These all are the three important aspects. Whatever knowledge you are presenting before the learner, you have to present it in a structured manner. Another, you have to present information in a sequenced manner. Similarly, you have to praise, you have to give the rewards and punishment, as well as you have to pause. To praising means to learn, to provide time to think. So इन्होंने जो इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी प्रपोज की थी वो थी डिस्कवरी लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग, लिटरेचर सर्च, summarizing, defense of opinion. This type of methodology he has proposed for instruction. So today in the morning session we have discussed about the lecture method. Now I am discussing with you certain another techniques or another strategies, that is the discovery learning. If you pose a problem before the student, they will discover and they will learn the concept. Similarly, you promote the learner to inquire about related with the problem. So they will inquire and conduct and get answer from you or answer from the problem and solve their and learn. Another one is experimentation. They can conduct their own experiments. They can observe the phenomenon and get information. They can ask the people by taking the interview. Similarly, literature survey is also proposed by Jerome Bruner. Summarizing the main concept. Defense of opinion is also very important. If I ask them such type of question, yesterday we have discussed that write your opinion, give your opinion. That means you have to defend your concept. You have to give your opinion by putting the certain values to your opinion. So this is one of the historical predecessor who proposes the constructivist idea of constructivist pedagogy. Now another is the Alfred North Whitehead. According to him, education is being able to use knowledge. That means if a person is educated, he will be able to use knowledge, whatever knowledge he acquired through the experiences, he acquired through the discovery learning, he acquired through the attending your classes, but he should be able to utilize the knowledge in a novel situation. What does it mean? He do not say that you should just reproduce whatever knowledge you have gained. You have to be able to use the knowledge. Your learner should be able to apply knowledge in a different situation. So if I look at the constructivist philosophy, we have two different schools of thought. One we call cognitive constructivism, another one is socio-cultural constructivism. So Jean Piaget, Ernest Glassfield, they are the cognitive constructivist. Then another is the Vygotsky and this Barbara, they are related with the social cultural constructivism. Let us understand how this constructivism or how this constructivist pedagogy proposes by these two different schools of thoughts. So according to if you talk about the constructivism, so one aspect is social aspect in which knowledge is constructed socially. एक जो ग्रुप है वो ये कहते हैं कि every knowledge is co-constructed. That means knowledge is negotiated through conversation, and this is knowledge is basically they according to them. and social constructivist की यदि मैं बात करती हूँ तो उनके हिसाब से knowledge क्या है? Knowledge is constructed socially. If you talk to the people, if you discuss the idea with the people, the knowledge will be enhanced and knowledge will be created. Similarly, the two thoughts related with the social knowledge construction is co-constructivism. Knowledge is negotiated through conversation and conversation. Similarly, situational constructivism, knowledge is constructed socially through everyone has different social experiences resulting in multiple realities. That is very important aspect कि कोई भी knowledge की single reality नहीं होती है. ये हमको भी पता है कि हर व्यक्ति का अपना परसेप्शन होता है, हर व्यक्ति के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और हर गेन्ड नॉलेज को हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसके सोशल कनेक्ट के हिसाब से यूटिलाइज
करता है. The another thought says that is the individual. So knowledge is constructed individually. इसका मतलब क्या हुआ? We have two different separated thought related with the constructivism. कि one is cognitive constructivism. According to him, the knowledge is an external reality that is constructed through internal conflicts within the individual. बहुत सिंपल शब्दों में यदि ये कहूं कि हर व्यक्ति जो भी नया नॉलेज है, जो भी नॉलेज वो गेन करता है, उस नॉलेज के ऊपर वो अपना खुद का अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस में कॉन्फ्लिक्ट्स करता है, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस में उसको नॉलेज को लिंक करता है और एक नया इंडिविजुअल नॉलेज उसका अपना क्रिएट होता है. सिमिलरली यदि हम रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो ये भी इंडिविजुअल नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअली based on an individual's unique experiences. There is no one objective reality. That means ये दोनों थॉट, एक थॉट कहता है कि there is an external reality, another thought says that subjective है, there are multiple realities. तो if you look this constructivism thoughts, that means बहुत सिंपल सी बात है कि व्यक्ति इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकता है और व्यक्ति सोशल एक्सपीरियंसेस के साथ भी सीख सकता है. बट अल्टीमेटली रियलिटी इज द लर्निंग इज इंपॉर्टेंट. हाउ वी आर लर्निंग, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एनीवे अ लर्नर हैज टू लर्न. नाउ यदि मैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है जीन पियाजे ने दिया था कि लर्निंग इज अडेप्टेशन. दैट मीन्स व्हाट लर्निंग इज टू अडॉप्ट इन अ नोवेल सिचुएशन accomplished by acculturation, assimilation and equilibrium. That means जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो हम अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं मतलब हम नई सिचुएशन के साथ अडेप्ट होते हैं. सो इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इंटररिलेटेड आइडियाज और स्कीम्स. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन टीचर इज गिविंग टू द लर्नर ऑर्गेनाइजेस हिज इंफॉर्मेशन, he correlate his information and he interrelate the ideas and make it in a systematic manner. Then only he will be able to retrieve the information. So this is one of the cognitive constructivist ideology in which the learning is individual, learning is a cognitive process. Similarly, the another Glaserfield, he was related with the radical constructivism. So our subjective experiences interact with our previous knowledge to construct new knowledge. So यदि हम दोनों ही cognitive constructivist जीन पियाजे की भी बात करें तो according to जीन पियाजे learning is adaptation and according to Glaserfield that learning is a subjective experiences. That means we learn through our experiences and interact with our previous knowledge. That means previous knowledge ही हमारी नई learning का base बनता है. So these all are the two cognitive constructivists are very important to understand the child psychology, to understand how a learner learn. Now another we talk about the social constructivism की यदि मैं बात करूं तो we have Vygotsky जिन्होंने zone of proximal development का propose किया था. So mediators of human action in order to construct meaning. तो हम यदि अपने मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज सर्टेन टूल्स लाइक टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज कर सकते हैं हम और साइकोलॉजिकल टूल्स का भी यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट नॉलेज, इफ यू आर यूजिंग द human psychology as a tool, that means in both the ways you can transmit knowledge. But इन दोनों चीजों में किस चीज का इंपॉर्टेंस होता है? कल्चर एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स मेक अ डिफरेंस. दैट मीन्स कि हम कोई भी तरीके से यदि छात्र को पढ़ाते हैं तो उसका खुद का कल्चरल बैकग्राउंड, उसका हिस्टोरिकल, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसके एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज फैमिली, एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, experiences of the society where he lives makes the difference in his learning. That means society किसी भी छात्र के सीखने पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है. Now, if you look at the zone of proximal development which is proposed by Vygotsky, that is the every learner, what the learner be able to achieve independently. Similarly, which learner can currently achieve independently, that also matters.
So what the learner can achieve with assistance, that is the scaffolding occurs through the support and the knowing the more from others. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई पिक्चर दिखाते हैं, जब भी हम कोई डायग्राम दिखाते हैं, जब भी कोई हम साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज करते हैं, जब भी हम कोई टीचिंग की कोई टेक्निक यूज करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें लर्निंग को इन्हांस करती हैं और जो है ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर वर्क करती हैं एंड इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटेंसी ऑफ द लर्नर. तो जो भी आप, जैसे वी ऑलवेज इन आवर एजुकेशन वी प्रपोज दैट कि आप बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन केवल बोल के मत सिखाइए. You have to explain the information through pictures, through diagrams, through movie. ये सब चीजों का यूज इसीलिए किया जाता है because it increases the learning of the learner, and using these tools enhance the personal competency of the learner. Now another social cultural constructivist के लिए we always remember the Barbara's contribution कि learning requires the active involvement of the learner. कभी भी हम जब भी लर्नर को यदि पैसिव रूप में लेंगे तो कभी भी उसकी लर्निंग प्रभावी नहीं होगी. वो आपसे सीखेगा, एग्जाम में अपीयर होगा, सिंपल सी बात है, वो आपसे कॉन्सेप्ट समझेगा, रटेगा, उस कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करेगा और एग्जाम में केवल लिख पाएगा. बट एक्चुअल लर्निंग जब होने के लिए उसको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हियर शी प्रपोजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड डेवलपिंग लर्निंग थ्रू कम्युनिटीज. ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि हम जितना ज्यादा कोलैबोरेटिव तरीके से सीखेंगे. कोलैबोरेटिव सीखेंगे मतलब इफ यू गिव द स्टूडेंट ग्रुप एक्टिविटीज, इफ यू गिव देम द टास्क थ्रू विच दे कैन लर्न सोशली, एक दूसरे से सीखें, तो उनका सीखना ज्यादा प्रभावी होता है. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट कि हम यदि केवल क्लास में एक लेक्चर लें, उसके बदले यदि बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, बच्चों को कोई असाइनमेंट देते हैं जिसमें उनको सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, यदि उनके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम पोज करते हैं जिसमें वो बाकी लोगों को इन्वॉल्व करे, तो ऑफ कोर्स उनकी लर्निंग ज्यादा परमानेंट होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है. सो नाउ हाउ दिस फिलोसॉफी, हाउ दिस पेडागोजी कैन फिट इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया था, लेट अस हैव अ लुक फॉर दैट कि as far as constructivism is concerned, no learning is possible unless the learner involved in the process of learning. And how to make the learner involved in the process of learning? Through his own cognitive development, through the socio-cultural background also. तो ये दोनों चीजें हमारे लिए एक बेस का काम करती हैं through which we can make learner to learn in a different manner, to learn permanently and to learn better with the full of competency. So student-centered instructional strategy, why we should use it? So quality teachers respect learners, thus they rely on constructivist teaching and learning approaches that is proposed by them. Become an effective teacher, it is a process, not an event. Of course, if you look at the process of teaching, or if you look at as a teacher, the teaching is always considered as a process. So every teacher evolves when he tries to understand the learner's learning and learner's psychology. Now, as far as the constructivist pedagogy is concerned, so we look that instructor or teacher is viewed as a guide, manager, coach or tutor. That means हमारा जो यहाँ पर role होगा वो क्या होगा? We have to work as a guide. We have to guide the student towards the process of learning. We have to manage the situation. We have to create the situation. Sometimes you have to behave like a coach, where you have to train the learner. Sometimes you have to behave like a tutor. That means कि you have to play a multiple role. So जब हम ये multiple role play करते हैं तो automatically learner की learning enhance होती है. And the purpose of a teaching or teacher is to help students develop thinking and reasoning skills. So thinking or reasoning skills, when we are able to develop thinking and reasoning skills among the learner, of course through the problem solving, through the metacognition and through the critical thinking. ये तीनों चीजें जब learner की develop होंगी, तो how to do that? Always challenge learner by asking questions such as why, what do you mean, how do you know that's true,
अवॉइड गिविंग द आंसर्स और ओपिनियन। बहुत सिंपल सी बात है कि यदि हम क्लास में इस तरीके की चीजें पढ़ा रहे हैं, कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो लर्नर को से व्हाई जरूर पूछिए कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। इफ ही विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई, देन ऑफ कोर्स उसकी लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। फिर इफ यू आस्क देम व्हाट डू यू मीन, आस्क द ओपिनियन। If you ask the opinion of the child, of course he will think, his metacognition process will involve. And another important कि how do you, that's true, if you ask this type of questions तो automatically उसमें सारी चीजें involve होती हैं। So टीचर का रोल यहाँ पर क्या है? You have to play a role as an expert, but they refrain from pouring knowledge into learner's mind. Of course आपको कोई भी चीज रेडीमेड लर्नर को नहीं देना है। That is one of the basic tenet of constructivist pedagogy is कि कोई भी रेडीमेड नॉलेज आप लर्नर के ऊपर पोर मत करिए, बिल्कुल उसको do not pour the knowledge. Help learners relate new knowledge to existing schemes. हमेशा ये बात करिए कि आप जो नया नॉलेज पढ़ा रहे हैं, जो नया नॉलेज सिखा रहे हैं उसको, जो नया कॉन्सेप्ट उसको समझा रहे हैं, तो उसके प्रीवियसली लर्न नॉलेज के साथ जरूर उसको लिंक करिए। एक्सपेक्ट नॉलेज एप्लीकेशन। जो भी आप चीज पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज आप उस बच्चों को सिखा रहे हैं, उसका एप्लीकेशन जरूर बताइए। उसको किस जगह कहाँ वो यूज कर सकता है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स बताइए उसको, और वो एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक करिए। ऑटोमेटिकली उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होगी, वो इजीली आपके कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। फिर अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज एक्सपेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम उनको सिंपल सी बातें, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कि छोटे छोटे स्कूल्स में, विलेजेस में बच्चे बहुत सारे इंडिजिनस आइडिया लगा करके, इंडिजिनस कॉन्सेप्ट लगा करके छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि कई बच्चे कुछ ना कुछ नई नई टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं ना कि सिंपल सी टेक्निक्स को यूज करके वो कई चीजें इवॉल्व भी कर पा रहे हैं। तो वो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज दे क्रिएट देयर ओन नॉलेज, दे डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग व्हेन टीचर पोजेस प्रॉब्लम बिफोर देम। जब टीचर उनके प्रीवियसली डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ उनकी एप्लीकेशन सिखाएगा, ऑटोमेटिकली उनकी लर्निंग एनहांस होगी। Another, expect construction of new knowledge is possible when you link the previously learned information with the new information. Are interactive, you should be always interactive, always ask questions. जो मैंने आपको अपने previous उसमें भी बताया था कि teacher must ask questions. जब आप प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा? जब भी आप प्रश्न पूछेंगे तो child will start thinking, and when you are able to start thinking or develop thinking among learners, तो automatically आपका रोल एज ए टीचर का रोल फुलफिल होता है। देन प्रेजेंट करिकुलम फ्रॉम होल टू पार्ट। कभी भी करिकुलम को टुकड़े टुकड़े में मत प्रेजेंट करिए, ऑलवेज प्रेजेंट करिकुलम। एक बिग पिक्चर उनको दिखाइए और बिग पिक्चर, बिग कॉन्सेप्ट बताइए, फिर उसको पार्ट करके एक्सप्लेन करिए। सीक स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जरूर उनसे जानने की कोशिश करिए, जरूर उनसे उनके ओपिनियन गेन करने की कोशिश करना चाहिए। सो दिस आर द through which we can adopt the constructivist pedagogy। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हर एक टीचर को क्लासरूम एक्सपीरियंस के समय ध्यान में रखना होता है। Now, how the knowledge can be constructed? So teacher helps learner construct knowledge through authentic experiences, collaborative activity, discussion and reflection. So हम उनको authentic information दें, authentic examples उनके सामने कोट करें, collaborative activities कराएं, ग्रुप में एक्टिविटीज कराएं, कोलैबोरेटिव लर्निंग करें। सिंपल मीनिंग ऑफ कोलैबोरेशन इज इन्वॉल्व मोर एंड मोर लर्नर इन द प्रोसेस। तो जब एक दूसरे से जब लर्नर सीखते हैं तो ऑफ कोर्स कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज होती है, उनके बीच में डिस्कशन को प्रमोट करिए, क्योंकि नाउअडेज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिपिंग द क्लास। अब फ्लिपिंग द क्लास का बहुत सिंपल सी बात है कि हम लर्नर को एक कॉन्सेप्ट या कंटेंट पहले से पढ़ने के लिए दे दें, और उसके बाद जब हम उनसे फेस टू फेस मोड में मिलें, जब हम उनसे ऑनेस्टली बात करें, तो हम उनसे डिस्कशन करें और उनके व्यूज लें। तो जब हम उनसे डिस्कशन करेंगे, जब हम उनके व्यूज लेंगे, जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे, जब वो इंक्वायरी लर्निंग करेंगे, जब वो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू कन्वर्ट अ क्लास इनटू live class. So convergent versus divergent questions, both type of questions very important. Avoid dead end
कैमेलियन, फजी, पुट डाउन और प्रोग्राम्ड आंसर क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछिए जिनका कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी नोन कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा सिंपल एक रटा रटाया आंसर आपको दें। उसके बदले आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए जो उनकी थिंकिंग को प्रमोट करे, जो उनके ओपिनियन को गेन करे। तो हमेशा जो है यू हैव टू use the divergent type of questions where reflective thinking should come। तो डिस्कशन का मोड होना चाहिए प्लस एनक्वायरी लर्निंग का मोड भी टीचर को यूज करना चाहिए। तो as and when you use this technology, the knowledge construction will be possible। Then another, increase participation by using U shape and circle space। बहुत सीधी सी बात है, जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो जनरली हमारे क्लासरूम के अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन अ सर्कल मैनर और यू शेप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरी क्लास में तो 60 बच्चे हैं और 60 बच्चे पूरे के पूरे यू शेप में नहीं बैठ सकते हैं। वेरी सिंपल, सिंपल सी बात है। इस कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब ये है कि यू शेप का मतलब होता है कि एवरी चाइल्ड शुड फील इन्वेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो यदि हम फिजिकली उनको यू शेप में नहीं बिठा सकते हैं तो हम उनको प्रैक्टिकली हम उनसे हर एक चाइल्ड को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हर बच्चे को थिंकर बना सकते, थिंकिंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं बाय आस्किंग देम हिज ओन ओपिनियन, हिज मल्टीपल we can ask them divergent type of questions, so he will be able to give us answer and he will able to put his opinion before us, before the other learners also। so social learning भी होगी और cognitive learning भी होगी। फिर using cooperative strategies like think pair share, buzz groups, ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये हमको हेल्प करती हैं कि हम लर्नर को सेल्फ लर्निंग और सोशल लर्निंग की तरफ मोटिवेट करें। नाउ if I talk about the constructivist classroom, so constructivist classroom always emphasize on theme and big concepts। हमेशा उनके साथ बेसिक थीम और बिग कॉन्सेप्ट मीन्स मेजर इश्यूज के साथ में डिस्कशन करिए। लर्नर्स क्वेश्चंस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, नॉलेज एक्सेट्रा, ये सब को हमको इनहांस करना है। रिस्पेक्ट फॉर प्राइमरी रिसोर्सेज एंड मैनिपुलेटिव्स को रिस्पेक्ट करिए। ऑलवेज फील दैट स्टूडेंट्स आर थिंकर्स, make them students to think। Now new theories are developed and tested through the constructivist classroom and the role of teachers is to managers and facilitators only। So what does it indicates that कि कोई भी रेडीमेड नॉलेज लर्नर के सामने मत दिखाइए, उसको इस तरीके के नॉलेज को इस तरीके से पोज करिए जिससे आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने डालें और बच्चों को बोलिए कि वो प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। जब इस तरीके के जब हम कोई भी थ्योरी जो हमको बढ़ानी है, यदि हम उसको प्रॉब्लम के साथ पोज करें, सपोज इफ आई एम टेलिंग यू वन क्वेश्चन दैट इफ you have to take a class in which you have to involve all the learners, what strategy will you use? Then I will get multiple answers from you learner। Someone will say that I'll ask some exercises, I'll give some exercises to the learner, I'll pose some problem before the learner। So जितना ज्यादा आप इसमें थिंकिंग करेंगे उतनी नई नई थ्योरीज डेवलप होंगी और वो थ्योरीज डेवलप होने के बाद टेस्ट हो पाएंगी। सो हियर योर रोल इज एज ए मैनेजर, एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज which you just provide them in the facilities, so knowledge will be constructed by learner individually and socially in both the manner। Now constructivist classroom में big picture क्या है? सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम उनके सामने पोज करना, उनको थिंकिंग की फ्रीडम देना, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, सॉल्यूशंस प्रोवाइड फॉर डेवलपिंग मोर प्रॉब्लम्स, देन अंडरस्टैंडिंग इन एडिशन टू नोइंग और क्रिएटिविटी इनहांस करना। तो ये सब जब एक्टिविटी आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके क्लासरूम में एक बिग पिक्चर क्रिएट होती है। बहुत सीधी सी बात है कि यदि मैं उनको ये अभी इन सिंपल सा कॉन्सेप्ट यदि मैं आपके सामने रखूं कि ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, इफ आई से दैट कि if this corona pandemic would not have been happened in our country, then what will happen? यदि ये कोरोना पैंडेमिक नहीं आया होता तो क्या होता? अब क्या होगा सर? ये एक हमने छोटी सी उनके सामने एक प्रॉब्लम इनग्रेन करके दी। इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि भाई कोरोना नहीं होता तो ये होता वो होता, ये सब करने के बदले यदि हमने उनसे पूछा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स दे विल गिव यू मल्टीपल आंसर कि हम इस तरीके से फेस टू फेस नहीं सीख रहे होते, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे होते,
या हमारी क्लासेस के अंदर हम जैसे रूटीन में पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते होते, या हम हमारी इंडिजिनस वे जो हम लिविंग एंड लर्निंग किया है वो नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू गिव फ्रीडम टू द लर्नर टू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। देन हम उनके जो ओपिनियंस हमको मिल रहे हैं हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनसे सॉल्यूशंस ले रहे हैं, उन सॉल्यूशंस के बेसिस पर हम उनको और हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स देंगे। तो इस तरीके से हम न्यू नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, नॉलेज को एडिशन कर पाएंगे और लर्नर्स की क्रिएटिविटी को भी हम इनहांस कर पाएंगे। So, if you look at the constructivist classroom, learner may construct their own meaning. Teachers search for learners' understanding and structure learning and provide them learning opportunity. For students to refine or revise this understanding by posing contradictions, presenting new information, asking questions, encouraging research, engaging students in inquiries designed to challenge current concepts। ये सब चीजें जब आप शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लास की बोर्डम खत्म होगी और आप लर्नर को लाइफ लॉन्ग लर्नर में कन्वर्ट कर पाएंगे। So, if I talk about the basic tenement or principle of constructivist classroom, teachers seek and value students' point of view। मतलब छात्र के जो व्यू हैं, छात्र का जो ओपिनियन है उसको टीचर्स को हमेशा जानने की कोशिश करना चाहिए और उसको वैल्यू करना चाहिए। क्लासरूम एक्टिविटीज चैलेंज स्टूडेंट्स सपोजिशन। यू हैव टू चैलेंज योर लर्नर बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बाय पोजिंग प्रॉब्लम ऑन सॉल्यूशंस। तो जितना ज्यादा आप चैलेंज स्टूडेंट को करेंगे उतना ज्यादा उनकी लर्निंग इनहांस होगी। टीचर्स पोज प्रॉब्लम्स ऑफ इमर्जिंग एंड रिलेवेंट इश्यूज पर जब टीचर्स प्रॉब्लम पोज करेंगे, टीचर्स बिल्ड लेसन अराउंड बिग आइडियाज, टीचर्स असेस लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेली टीचिंग। ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम केवल टीचिंग ही नहीं, हमको असेसमेंट भी करना है बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। सो हमको बेसिकली 5 E's का यूज करना है। ऑलवेज इंगेज योर लर्नर, always engage the learner in the ideas, in the thinking, in the process of thinking, developing ideas, developing creativity, developing their reflective thinking। ये सारी चीजें करना है। फिर एक्सप्लोर भी करना है। एक्सप्लोर करना है मीन्स हाउ मच दे आर नोइंग, हाउ the learner's knowledge, as well as we make learner to explore the big ideas, to explore the solution of a problem. Then we make the learner to explain whatever the knowledge he is knowing, whatever the idea he is having, what he think about a problem, he can explain. He can make them to elaborate the concept. We have to elaborate the concept and we have to evaluate the learner's idea by posing him problem, getting the solution from him, asking him to put his view. All these strategies help the learner to achieve better in the classroom. Now, हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी कैसी होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स प्राइमरीली प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए। दैट इज प्रपोज्ड बाय डिस्कवरी लर्निंग। दैट इज द जेरोम ब्रूनर ने बताया था कि हमको डिस्कवरी लर्निंग मतलब क्या? सिंपल सी बात है कि बच्चों के सामने हम इंस्टेड ऑफ पुटिंग द आइडिया वी पुट देम प्रॉब्लम। अब जब हम उनको सामने प्रॉब्लम देंगे तो वो अपने आप अपनी थ्योरी बिल्ड करेंगे बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम। Similarly, inquiry learning, if you pose a problem and ask the learner to inquire, so of course inquiry learning is another strategy which we usually use to in the classroom। कि हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी टेक्निक आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं बच्चों के सामने इंक्वायरी लर्निंग यदि मुझे प्रमोट करना है तो एक मॉडल हम यूज करते हैं जिसमें हम बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम देते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपके सामने भी कोट करना चाहूंगी कि 2 फुटबॉल की टीम थी और एक टीम बहुत अच्छी फुटबॉल प्लेयर थी और दूसरी टीम में थोड़े से वीक फुटबॉल प्लेयर्स थे। लेकिन जब बहुत गर्मी के दिन थे और जब मैच शुरू हुआ, फुटबॉल का मैच हुआ, तो फॉर एवरीवन सरप्राइज कि जो टीम बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी, जिसके बारे में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो विन करेगी, वो दैट टीम आफ्टर मिड ऑफ द सेशन ग्रेजुअली लूज द गेम। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको ये रीजन फाइंड आउट करना है कि जो फुटबॉल की अच्छी टीम थी, जिसके अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, वो मैच कैसे हारे। देन ऑफ कोर्स
यदि हम बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम पोज करते हैं, ये मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम पोज की, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या जो टीम मैच हारी उस टीम को के साथ पार्शियलिटी हुई, क्या कोच बराबर नहीं था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपके सामने रेज करेंगे और उन क्वेश्चंस के आप उनको आंसर करेंगे यस और नो में। जब आप यस और नो में आंसर करते हैं तो ग्रेजुअली ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स वो एक थ्योरी बिल्ड करते हैं और धीरे धीरे वो सॉल्यूशन की तरफ मूव होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी वी जनरली यूज इन आवर क्लासरूम। तो आप भी अपने क्लासरूम में इस तरीके की स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग विच इज प्रपोज्ड बाय जॉन डीवी, कि आप बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम पोज करें, बच्चे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करें, उसकी थ्योरी बिल्ड करें और फिर उसको सॉल्व करें। देन अनदर दैट इज द ग्रीक इंडक्टिव लर्निंग आइडिया दैट फोकसेस ऑन इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक प्रॉब्लम से एक जनरल थ्योरी बिल्ड करना या जनरल थ्योरी के बेसिस पर एग्जांपल्स कोट करना। ये दोनों चीजें इंडक्टिव लर्निंग का पार्ट हो सकती हैं, कि इंडक्टिव टू डिडक्टिव और डिडक्टिव टू इंडक्टिव। Then group learning is also one of the idea which is proposed through this constructivist classroom only strategy only. Then that means problem based learning यदि हम करेंगे तो वो क्लास की बोर्डम भी हटाएगा और लर्नर को engage करेगा in constructive manner. So sorry, this is one of the model of experiential learning. So experiences, that is the activity we perform, that is do it, share these experiences and get the reaction through the observation what happened, then process by discussing, analyzing, reflecting important issues, then generalizing the concept, connect the experiences to real world examples and apply this situation. So it has the three aspects: perform the activity, reflect on activity and apply this concept. So ये तीनों चीजें मिलकर के हमारा एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल भी बन सकता है। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल जो हम जनरली रिसर्चेस में यूज करते हैं। In higher education, when you conduct research, you identify the problem, you perform the activity, you share the results, all the process the result, उसको discuss करते हैं, analyze करते हैं, then एक जो हमारा results है उसको generalize करते हैं और उसको फिर application करते हैं। So this is one of the experiential learning model can be used in everyday classroom teaching and learning process. Now, if I talk about the constructivism and the metaphor of the mind, mind is always termed as a computer. Knowledge is a matter of mind as a brain. Knowledge is a function of distributed connections and network activities. Then knowledge cannot be organized as a global system. The mind is dynamic, constantly changing. Thinking takes place through connections and interconnections only. So this is one of the metaphor related with the constructivist ideology. Then if I talk about the constructivism and education technology, so according to constructivism, technology is a tool for the learner, an integral part of the cognitive activity. So they feel that mind as a tool, so we can utilize this tool by reflecting on different concepts, by organizing different concepts in a systematic manner. So this is one of the use of technology or use of psychology as far as the constructivist ideology. Now, another important aspect is assessment. क्योंकि केवल बच्चों को सिखाना ही नहीं, उनका assessment वाकई में उन्होंने really whether they really learn from us or not. So always use authentic assessment interwoven with teaching and has a variety of approaches can be used. So as I already discussed in the morning session, whatever you are teaching, I just propose that कि 5 मिनट पढ़ाया और उसके बाद उसके questions पूछे तो हम उनका assessment करते चलते हैं. So test generated by students learning, multiple choice, essay, short answer type questions can be asked. Peer and self-evaluation is also another technique. Portfolios can be made, performance assessment can be done, and the tool authentic assessment is very important as far as the assessment is concerned. So instead of asking just in examination some questions and getting answers in the written form, better we apply the multiple choice type of questions. We ask them short answer type questions. We can ask them essay type questions. Similarly, we can have the peer and self-evaluation also. Then we can prepare a portfolio whether for assessing their social skills, their cognitive skills, their
their adjustment skills, all these things can be done. So, dynamic assessment, seeking compatibility in order to understand others' point of view, understand learners' thinking, and we can map the knowledge of learner. This is one of the compatibility dynamic assessment tools that can also be used for the assessing the learner's performance. Now, what is the advantages? So, simple सी बात है कि ये increase self regulation, reading comprehension बढ़ा सकता है, curiosity and cognition बढ़ाता है, self esteem and motivation to learn is also one of the very important. Then increasing the self thinking, HOTS improves करता है, reduces achievement gaps. Achievement की जो gaps हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जो क्लास में सिखा रहे हैं लेकिन लर्नर नहीं सीख पाते हैं. तो when you involve learner, they will definitely their knowledge retention will increase, then they preferred by learners and highly involve their own learning. तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज, जिस तरह की आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली लर्नर सेल्फ लर्निंग की तरफ मोटिवेट होगा. आई ऑलवेज से दैट कि नॉलेज की कोई डर्थ नहीं है, knowledge is available at fingertips, but how you present your learner to utilize knowledge, how to involve your learning in the process of understanding, that makes the difference. Now, some certain problem, this is a time consuming, noise level may increase, there is a difficulty in controlling the class teachers perception, क्योंकि जब भी आप learner को बहुत ज़्यादा involve करेंगे तो discussion mode में लेंगे तो ये चीजें होती है, but we can use this technique to increase the learning of the learner. Now, culture is also makes a difference. Learners' dependence on teachers is also one of the important. Assessment, there is a possibility you cannot teach to test. Individual differences हम थोड़ा सा नहीं जज कर पाते हैं, ये भी एक important थोड़ा सा problem इसमें होती है, but these all are the minor problems which can be overcome by utilizing and evolving your self concept through this technique, using this technique. So I feel that this is a supreme art of teacher which can awaken joy in creative expression of and knowledge. This is given by the Albert Einstein's quote. So let us use this constructivist approach and create an effective learning community. I hope that I discussed at length, and now it's time to build your own knowledge. So let us have some discussion over these issues. So thank you so much, and I just now want to share your experiences, your views with me. So you are invited for discussion only. No discussion. So all are the passive learner, but see, I am teaching a constructivism and teaching an active classroom, so I just need your opinion. Anybody? Is any question in the chat box? No, ma'am. No. Nothing. Why? इसके दो ही मतलब हो सकते हैं मैम, सब समझ में आ गया होगा या कुछ भी नहीं या समझा. तो कुछ बट आई डोंट बिलीव दैट कुछ भी नहीं समझा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. डिस्कस That's not करिए. possible. क्वेश्चन नहीं होंगे तो ठीक है, बट यू डिस्कस विथ मैम. हॅलो हाँ सर, बोलिए. या okay. मॅडम, मला एक डिस्कशनच करायचं होतं. बरेचदा बोलिए. आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा काही शिकवत असतो, स्पोर्ट्सशी रिलेटेड आहे, अभी दोनों मैच की करत असताना एखादा पार्ट आपण खेळाडूंना शिकवत असतो. बऱ्याच एक वेगवेगळ्या रिक्वेस्ट है बाकी पार्टिसिपेंट से, किसी ने टीवी भी अपने आप चालू को है। ऑन किया है. बीच में हुआ था वो, उधर से फिर बंद कर दिया पहले दिन ही. हॅलो Mr. Parag, please repeat your question. मॅडम, मी स्पोर्ट्स फील्डशी रिलेटेड आहे. Okay. कोचिंग करत असताना या सगळ्या गोष्टी तिथे पण यूज होतातच. आपण एखादा पार्ट विद्यार्थ्यांना बऱ्याच वेगवेगळ्या पद्धतीने समजावून सांगतो कोचिंग करत असताना. वेगवेगळे उदाहरणं पण देतो. तरी सुद्धा असे खेळाडू जे आहेत किंवा विद्यार्थी तो पाठ समजायला त्यांना खूप अडचण येते. नेमकं काय, अशी कुठली पद्धत वापरायला हवी?
coaching सी करते बहुत हैं? सिंपल है, आप उनको उनके सामने प्रॉब्लम करिए और डिस्कवरी लर्निंग, दैट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वे। वो खुद अपने एफर्ट से सीखें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में तो आप कोई भी चीज उनको सिखा तब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद अपने आप डिस्कवर करके अपनी खुद टेक्निक इवॉल्व ना करें। आप उनकी टेक्निक्स को करेक्ट कर सकते हैं, आप बट आप उनको खुद को सीखने के लिए मोटिवेट ही कर पाएंगे, लेकिन हर चीज आप उनको नहीं सिखा सकते। सी इफ यू आर टीचिंग, इफ यू आर teaching them for playing football, of course they have to evolve their own techniques, तो उनको खुद को अपनी टेक्निक्स इवॉल्व करना है। you have to pose the problem before them and let them to solve their in their own way. This is the way, because you know why, what is the reason of डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयबिलिटी अमंग्स द यंगस्टर्स? द रीजन ये दैट है कि वो हम जो भी नॉलेज उनको दे रहे, रेडीमेड नॉलेज दे रहे, दे जस्ट मगिंग द नॉलेज और ओमिटिंग इन द एग्जामिनेशन, यही हो रहा है। तो इसके बदले हम क्या करें, हम उनके सामने इस तरीके के प्रॉब्लम्स पोज करें, इस तरीके की समस्याएं रखें जिसको वो खुद सॉल्व करें। तो जब वो खुद सॉल्व करेंगे, जब वो ग्रुप में इन्वॉल्व होंगे, जब वो खुद अपनी थ्योरी बिल्ड करेंगे, हम कई बार ऐसा बहुत सिंपल सा मैं बोलती हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस में उनको प्रैक्टिकल करने के लिए देते हैं और उनको उनको ये कोई एग्जांपल्स देते हैं। मेरा बहुत सिंपल से कहना है कि हम उनको एग्जांपल्स उनके सामने कोट कर दें और उनको बोलें कि आप अपनी थ्योरी बिल्ड करें इस एग्जांपल्स या इस रिजल्ट्स के बेस। हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उनको कोई प्रैक्टिकल करने को देते हैं और रिजल्ट्स लिखने को बोलते हैं। इसके बदले हम क्या करें, रिजल्ट्स उनके सामने दें और उनको बोलें कि इसकी थ्योरी बिल्ड करो। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, their thinking will be we can motivate the learner to think। नाउ जैसे अभी मैंने आपके साथ में बहुत सारी टेक्निक्स डिस्कस करी, my idea is why I have taken less time, because I just want that we should discuss। तो हम जब डिस्कशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हम इवॉल्व होते हैं। इफ यू हैव ए लैंग्वेज प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड मराठी वेरी वेल, मैं हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों भाषाएं अच्छे से जानती हूँ, आप मुझसे किसी भी भाषा में डिस्कशन कर सकते हैं। तो डिस्कशन जब तक आप अपने आप को ओपन अप नहीं करेंगे तब तक आपकी क्वालिटी एनहांसमेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। व्हाई यू आर अटेंडिंग दिस कोर्स वर्क, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ यू डोंट वांट टू लर्न, इफ यू हैव टू लर्न। एंड जब तक आप ये टेक्निक्स नहीं सीखेंगे तब तक आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। यदि आप ऑफलाइन मोड छोड़िए, ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन मोड में भी आप कंटेंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के सामने नहीं दे रहे हैं, उनको मोटिवेट नहीं करें, उनको थिंकिंग को डेवलप नहीं करें, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ योर टीचिंग। सो आई होप दैट विल use this all different types of techniques in our higher education classes to make our classroom more alive। मॅडम एक याच्याशी संबंधित असं रिलेटेड एक क्वेश्चन आहे। हम्म, हॅलो, हाँ बोलिए ना। तर सेम असा प्रॉब्लेम थोडा विरुद्धार्थी याच्याने होतो की एखाद्याची खूप चांगली प्रॅक्टिस असते, एक्झामच्या संदर्भात, परीक्षेच्या संदर्भात विद्यार्थी खूप अभ्यास करतो आणि परीक्षेच्या वेळेसच नेमका त्याचा गोंधळ होतो। तसंच आमचं स्पोर्ट्स मध्ये सुद्धा खूप चांगली प्रॅक्टिस होत असते आणि नेमकं टुर्नामेंट असते तर त्यावेळेस त्याच्याकडनं अपेक्षित असलेला परफॉर्मन्स दिसत नाही। See, boss, yeah, no, I always believe failure is a stepping stone for success। यदि बच्चा उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाया तो डू नॉट क्रिटिसाइज द चाइल्ड। हो सकता है उसको मेंटल स्ट्रेस होगा, आपको पता है ही इज नोइंग, तो कोई परीक्षा में पास होना ही आपकी लाइफ का सक्सेस नहीं है। कई लोग आपने देखा होगा कि पूरे फर्स्ट क्लास या मेरिटोरियस स्टूडेंट डिग्री लेकर के घूमते रहते हैं और एक एवरेज बच्चा समय पर नौकरी पा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि केवल कंटेंट का नॉलेज इज इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस, सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ, जो मैंने कल आपको ओबी जो पढ़ाया था उसमें भी यही बात है कि हम कितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव थिंकर्स के रूप में थिंकर बना सकते हैं उनको, कितना हम उनको लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो खुद के सेल्फ इवॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली वो लाइफ लॉन्ग लर्नर में कन्वर्ट होगा। एक फेलियर कैन नॉट जज योर होल लाइफ परफॉर्मेंस। तो हमेशा जब भी इस चीजों को लेकर के स्पेशली टीचर्स को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई बच्चा आपके एग्जाम में फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं आता है, वो उसको थोड़ा और समय दीजिए, उसके साथ थोड़ा और इन्वॉल्व होइए, ऑटोमेटिकली वो ज्यादा अच्छा सीख पाएगा आपसे। Hello, Okay. ma'am. Okay. I have a question. Yeah. Ma'am, does HOTS Yeah, mean please. higher order thinking skills? Yes, Does of course. HOTS mean higher order thinking? Yes, yes. So what Yes, assignments yes. can we give to students? What assignments we can give to students to develop this? Yes, wonderful Yes, question. You have wonderful asked a question. wonderful Yeah, question. okay, wonderful question. Someone's mic is on. Someone's please. mic is on, please. So देखिए, So देखिए, uh,
Suman has asked me this question. Am I right? Yeah. So Yes, ma'am. जब भी हमको हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप, कहीं तो भी मेरी वॉइस रिपीट हो रही है शायद. Yes, तो ma'am. जब भी मैडम हमको पूछ हायर रहे ऑर्डर थे ना. थिंकिंग डेवलप करना, हाँ या ओके ओके ओके. तो जब भी हमको हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करना होती है तो हमको उनके जो सॉल्यूशंस हैं या जो हमने उनको साथ में एक्सप्लेनेशन किया है तो व्हाट इफ जरूर बोलना चाहिए उनको. दैट मीन्स यदि उन्होंने हमने कोई एग्जाम्पल उनके सामने कोट किया है तो उस एग्जाम्पल का अप्लीकेशन उसको बताइए, उस एप्लीकेशन से एडवांस तरीके से उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछिए, या बच्चे ने कोई सॉल्यूशन दिया है तो प्रोबिंग क्वेश्चन. मॉर्निंग में जो मैं आपको क्वेश्चनिंग बोल रही थी तो प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि जो उसने आंसर दिया है उस आंसर को बेस बना करके थोड़ा और हायर ऑर्डर के हम उनसे क्वेश्चंस पूछें, हायर ऑर्डर के उनके अंदर प्रॉब्लम्स उनके सामने पोज करें. जो इजीली अवेलेबल मटेरियल है वो तो बच्चा पढ़ ही लेगा, लेकिन आपको उस इजीली अवेलेबल मटेरियल की एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप उससे पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी थिंकिंग डेवलप होगी. और उसका एक नॉवेल एप्लीकेशन यदि आप उससे पूछें, अब मैंने एक सिंपल सा आपके सामने क्वेश्चन पोज किया था कि इफ दिस पैंडेमिक वुड नॉट हैव बीन हैपेंड, तो ये क्या है? ऑफ कोर्स इट विल गो इन अ हायर ऑर्डर थिंकिंग. ये पैंडेमिक हुआ तो क्या क्या हुआ ये तो सबको पता है, बट यदि नहीं हुआ होता तो क्या क्या हो सकता था या क्या क्या चीजें हम मिस कर जाते. तो ऑफ कोर्स उसको बहुत सारी चीजें इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ग्रेजुअली उसको हायर ऑर्डर पर लेके जाएंगी. और आपका जो कंटेंट, इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि जो आप कंटेंट उसको पढ़ा रहे हैं उसका एप्लीकेशन जरूर समझिए. आप एज ए टीचर, nowadays I have observed that majority of teacher are not focusing on application of the concept which they are teaching. तो वो जो भी एक भी दिन आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसका एप्लीकेशन उनको जरूर सिखाइए. एप्लीकेशन, और आप खुद भी उसका एप्लीकेशन रेडी रखिए. जब तक आपको एप्लीकेशन उस कॉन्सेप्ट का नहीं मिलता, डोंट टीच देम कॉन्सेप्ट. तो जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होगी ही नहीं, क्योंकि दे विल जस्ट मेमोराइज द कॉन्सेप्ट और आपको उत्तर देंगे. तो कभी भी जब भी मैंने आपको मेरे अपने स्लाइड्स में भी आपको दिखाया था कि यदि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सेट योर लर्निंग आउटकम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग. ये चारों ऑर्डर पे जितने ज्यादा आप आपके लर्निंग आउटकम्स डेवलप करेंगे उसी के हिसाब से आप अपना कंटेंट अरेंज करेंगे तो नेचुरल है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लर्नर्स में डेवलप होगी. और बेस्ट आइडिया इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लस प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. ये दोनों तीनों जो टेक्निक है ये बहुत हेल्प करती हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में. So I think Thank you, ma'am. anyone else? Okay, thank you so much for patient hearing and getting the idea. Hope you will apply this in your day-to-day classroom teaching and get better experience as a teacher and as a learner also. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for So much. such a wonderful. So, on behalf of HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my heartfelt thanks to Dr. Vaishnav madam. मैडम आपके चारों सेशंस इतने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थे. जो बिगिनर है इस फील्ड में उनके लिए तो ये मतलब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने भी पॉइंटर्स में नोट्स बना के रखे आपके लेक्चर के. सो ऑल द सेशंस आर वेरी वंडरफुल एंड Thank you so इंफॉर्मेटिव. much, ma'am. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम गिविंग. आपका Thank you. इतना बिजी शेड्यूल में से भी आपने 2 दिन का 3-3 घंटा निकाला. सो फॉर उसके लिए भी थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. I'm a passionate teacher, you know. Teaching is my passion. So Yes, thank you so much. Yeah, of course. Yeah, I feel that happy while teaching only. So I used to take this lectures and hope that every teacher should enjoy this teaching so they can develop their own. Thank you so much. Thank Should you I so leave, much. ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. this is about our all today's session. It was awesome, madam. Good. Questions का नाही विचारत तुम्ही लोक? Madam, since last 3 days I am the only one who's asking question. म्हणून मी आज शांत होतो. असं नसतं काही. मी 3 दिवस विचारले तुम्ही आता नाही विचारणार. ठीक आहे. नाही यानंतर परत ऍक्टिव्ह राहील मॅडम, काही हरकत नाही उद्यापासून. आप लोग ऐसे सो गए ऐसा लग रहा है फिर मेरे को तो.
नाही 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 मॅडम, नाही मॅडम, ऐकत होतो पण मी मुद्दाम क्वेश्चन ऐकता ऐकता विचारला. झोपून गेले का? नाही नाही नाही, सगळे ऐकतात मॅडम. तुम्ही मला म्हणत मॅडम व्हिडिओ ऑन करायला लावत जा वाटलं तर आम्हाला. नाही सर, व्हिडिओ ऑन केला की दुसरेच प्रॉब्लेम, कोणाचं भलतंच चित्र दिसतं, कोणाचं हो, ते बॅकग्राऊंडच व्हिडिओ वेगळं केला असतं. की लक्ष डायव्हर्ट होते त्यांनी मॅडम, इकडे डिस्ट्रॅक्ट इकडे होतात ना, ऐकण्याकडे लक्ष माइंड कमी रिसोर्स होते. पर्सन पण आणि डिस्ट्रॅक्ट होतात त्यांनी, त्याच्यामुळे हा, मी येस व्हिडिओ येस हा ऑफ हा ठेवायला सांगते. त्या ठीक आहे, पद्धतीने anyway, नाही ठीक ऑन करायचं. मॅडम. छान होते मॅडमचे लेक्चर्स, खूप इन्फॉर्मेटिव्ह होते हो हो, आणि खूप इन्फॉर्मेटिव्ह होते, सारा खूपच नवीन इन्फॉर्मेटिव्ह. शिकायला मिळालं. ऍक्च्युली दिस इज रिलेटेड टू ऑल बीएड अँड एमएड पार्ट, जे आपलं जनरली याच्यामध्ये नसतं सिलेबस मध्ये. बट HRDC चे जे गाईडलाईन्स आहे आपले फॅकल्टी इंडक्शन, तो खूपच पार्टिसिपंट्स एनर्जेटिक मॅडम होत्या, कारण की दोन्ही पिरियड कंटिन्यू घेणं नॉट इझी कंटिन्यू, टास्क. यस यस. कंटिन्यू, हाँ यस. एक्चुअली जो अपन लोग आते हैं, एक मिनट, म्यूट करिए, म्यूट करिए. जो एजुकेशन फील्ड से जो लोग नहीं हैं, उन लोगों के लिए अपने लिए जैसे नेट सेट और PhD, ये 2 क्राइटेरियाज होते हैं. तो बट कोई ऐसे प्रोफेशनल स्किल डेव्हलपमेंट के लिए अपने यहाँ पे कोई ऐसे एग्जाम नहीं होती है, अपन डायरेक्टली टीचिंग फील्ड मध्ये येऊन जातो. तर टीचिंग फील्ड में आने के बाद एक्चुअल टीचर के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो बीएड करने में और एमएड करने में वो सारी चीजें पता चलती है. तो ये जो सिलेबस का जो ये पार्ट है मॉड्यूल का, जो 10 मॉड्यूल्स अपने को दिए हैं, दिस इज अ पार्ट रिलेटेड टू अवर बीएड एंड एमएड पार्टिसिपेंट्स, जो अपने स्टूडेंट्स हैं. तो वो जो है कि टीचर की क्वालिटीज, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी, दिस इज द न्यू कंसेप्ट just now added in our UGC guidelines for faculty induction program. This was not initially in orientation program. तो ये सारी चीजें अभी जो चारों लेक्चर्स मैडम ने लिए, ये पूरा नया करिकुलम है, नए गाइडलाइंस के हिसाब से जो आया है सिलेबस, उसमें ये सारी चीजें दी है. तो आई होप आप लोगों ने इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके एंजॉय किया होगा और आगे भी आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टीचिंग में. वी ऑल आर फ्रेशर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ. तो आगे जब अपन क्लास में पढ़ाएंगे तो मैडम ने जो बताया है उन सारी चीजों को लेते हुए अपने को अपना क्लास अच्छा कैसे हो सकता है उसको ध्यान में रखते. मतलब मैंने तो बहुत सारा सीखा ये 6 घंटे में, मैडम ने जितना भी पढ़ाया है. आई होप आप लोगों ने भी नोट्स नोट डाउन करके रखे होंगे, क्योंकि नॉट ओनली फॉर क्विज पर्पज, क्विज तो ये एग्जाम के लिए है तो पढ़ लेंगे, बट अपना ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी मैडम के लेक्चर्स बहुत अच्छे थे. वो उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी शायद आप लोगों ने अगर मार्क किया होगा, जिस हिसाब से उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया था, दैट इज ओनली इन पॉइंटर्स एंड हाईलाइटेड फॉर्म्स. आप भी जब सेमिनार के प्रेजेंटेशंस बनाएंगे तो ये चीजें आपको भी याद रखनी है कि देयर शुड नॉट बी टू मच मटेरियल इन वन पर्टिकुलर स्लाइड. यू हैव टू जस्ट गिव द पॉइंटर्स अँड व्हाइल एक्सप्लेनिंग यू हैव टू एक्सप्लेन दोज पॉइंटर्स. खूप भरभरून त्याच्यामध्ये टेक्स्ट नाही ऍड करायचं आहे प्रत्येक स्लाइडमध्ये. स्लाइड प्रेजेंट करताना पण प्रत्येक बोलल्यानंतर पॉज घ्यायचा है. प्रेजेंट करने का तरीका भी आपने देखा होगा मैडम ने किस हिसाब से प्रेजेंट किया. प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाते समय कलर कॉम्बिनेशन, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीजें मार्क की जाएगी जब आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे तब. खूप गॉडी बैकग्राउंड असलेल्या स्लाइड्स यूज नका करू. मेक इट सिंपल एंड प्रोफेशनल लुक आना चाहिए. तो ये सारी चीजें अपने को धीरे धीरे समझ में आएगी. जैसे मैडम ने बोला था लेक्चर चालू करते समय फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो जब आप सेमिनार भी प्रेजेंट करेंगे तो उस वक्त भी आपका टॉपिक एकदम चालू नहीं करना है, उसका पहले थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन आपको बतानी है. इन दैट 8 minutes ओनली यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट टू बिगिन विथ व्हाई यू हैव चोजन दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर योर सेमिनार, द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक, वो सारी चीजें आपको इवैल्यूएटर को बताना और आगे वाले को एक्सप्लेन करना जरूरी है. आगे वाले को कुछ आता है नहीं आता है वो अपने को नहीं याद रखना है. आप पढ़ा रहे हैं और आगे वाले को समझ में आना चाहिए वो टॉपिक, उस हिसाब से भी आप लोगों को प्रेजेंट करना है. तो मैडम का लेक्चर अभी पहले हो गया तो ज्यादा अच्छा है. इसमें से आप लोग बहुत सारी चीजें अपने सेमिनार में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन भी और कल का भी मैडम का सेशन. एंड टुमारो ऑल्सो देर विल बी वन रिसोर्स पर्सन, अवधेश झा सर है, वो बाहर से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है.
and he is also renowned resource person and learned person. तो और मैं बता रही हूँ लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर. आप लोग हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोई भी 3 लँग्वेज में हेजिटेट नाही व्हायचं की इंग्लिश येत नाही तर मी कसा प्रश्न विचारू. पराग सर ने अभी मराठी में ही पूछा ना, मॅडम समज सकते. सारे रिसोर्स पर्सन अपने यहाँ के सारे लँग्वेजेस समज सकते. काही नाही तर सगळ्यांना कसंही हिंदी असो पण बोलता तर येतं ना. हिंदीमध्ये सुद्धा तुम्ही क्वेश्चन्स विचारू शकता. तो माझं हे म्हणणं आहे की नो डाऊट यू आर अटेंटिव्ह इन द क्लास, बट थोडासा इंटरॅक्ट करिये. घाबरायची गरज नाही आहे. आपण तसंही फेस टू फेस इथे नाही आहोत, तर आपल्याला लाईव्ह ठेवावं लागेल सेशन. तर हे तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की सेशनला लाईव्ह कसं ठेवायचं. याचा अर्थ असा नाही की मधामधातनं कंटिन्युअस क्वेश्चन विचारायचे. यू जस्ट नोट डाऊन युअर डाऊट्स. डाऊट जरी नसेल तर कन्सेप्ट जो समजला आहे तो बरोबर समजला आहे का हे सुद्धा तुम्ही लोक रिसोर्स पर्सनला सोबत डिस्कस करू शकता. सो कल से याद रखिए कि थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रखने की कोशिश करिए. जो झा सर के लेक्चर है वो भी 2 सेशन से कॉन्जिक्यूटिव 10:30 से 2 बजे तक, उनका भी इसी के आगे का पार्ट सर डील करेंगे. और परसों भी जो मैडम के लेक्चर से मतलब करिकुलम क्या है, करिकुलम पेडागोजी क्या होती है वो अपन कल से पढ़ेंगे. लेसन प्लानिंग क्या होती है, आप लोगों को भी लेसन प्लान कंस्ट्रक्ट करना है जो असाइनमेंट में दिया गया है. तो मंडे को भी एक मैडम आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे हाउ टू डिजाइन अ लेसन प्लान. तो उसका पूरा बेसिक आपका आज, कल और परसों में ये रिसोर्स पर्सन डेवलप करेंगे. एंड फाइनली वी विल स्विच ओवर टू हाउ टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान. लेसन प्लान के पहले अभी जो आपने सारी चीजें पढ़ी है वो लेते हुए अपने को आगे बढ़ना है. फाइन. सो आई थिंक दिस इज Ma'am. फॉर ओके. Ma'am. डे कल अपन मिलेंगे पहले Good सुबह 7:15 बजे फॉर योगा सेशन. आज के योगा सेशन भी अच्छे हुए थे. बहुत नए नए पोस्चर्स उन लोगों ने बताए थे. तो कल भी सर का ही लेक्चर रहेगा 7:15 से 8:15 और फिर 10:30 बजे अपना एक्चुअल जो लेक्चर है सिलेबस से रिलेटेड वो सेशंस रहेंगे. ठीक है. Good So, see afternoon, you. ma'am. हाँ यस ओके मॅडम. Good afternoon, ma'am. हाँ मॅडम बोला. काल आपण जे गुगल डॉक तयार केला त्याच्यामधलं जे ऍडव्हान्स फंक्शन आहे मला ते प्रॉपरली समजलं नाही. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ऍडव्हान्स इन दॅट गुगल डॉक्युमेंट? ऍडव्हान्स मध्ये बघा ऍडऑन्स आहेत मॅडम. ते ऍडऑन्सचा अर्थ काय होतो, त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला काही अप्लिकेशन्स दिले आहेत, जसे की व्हॉइस टायपिंग झालं, ट्रान्सलेशन झालं. त्याच्या व्यतिरिक्त गुगलवरती अशा बऱ्याच अप्लिकेशन्स आहेत ज्या आपण गुगल डॉक्युमेंटमध्ये ऍड करू शकतो. ऍडऑन्स म्हणजे वरून काहीतरी गोष्ट अजून ऍड करणं. तर जेव्हा आपण त्या ऍडऑन्सवर क्लिक करतो, गुगल डॉक्सनी जितकं फॉर्मॅटिंग दिलं आहे तितकं तर आपण करूच शकतो. पण त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला अजून काही गोष्टी त्याच्यामध्ये हव्या असतील तर त्या तुम्ही ऍड करू शकता बाय क्लिकिंग ऑन दॅट ऍड ऑन सेक्शन. ते कंपल्सरी नाही आहे. जर तुम्हाला अजून त्याच्यामध्ये काही नवीन टाकायचं असेल, ऍडऑन्स मध्ये बघा मी तिथे दाखवलं होतं वेगवेगळे अप्लिकेशन्स आहेत. तर त्यापैकी सपोज काय असतं, आता बघा तुम्ही लोकांनी पण आता लॉकडाऊन मध्ये बरेच कॉन्फरन्सेस वगैरे अटेंड केले असेल, तर त्यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट जेव्हा एखादी क्विज वगैरे सबमिट करता तर तुम्हाला डायरेक्ट ई सर्टिफिकेट मिळतं. ठीक आहे. तर त्या सर्टिफिकेटसाठी आपल्याला वेट नाही करावं लागत. तर ते ई सर्टिफिकेट ऍडिशनचं जे ऑप्शन आहे ना ते सुद्धा ऍडऑन्स मधनं आपण ऍड करू शकतो. तर या ज्या नवीन अप्लिकेशन आहेत ज्या ऑलरेडी गुगल डॉक्स मध्ये नाही आहेत, त्याच्यापेक्षा नवीन बाहेरून जर कोणत्या गोष्टी आपल्याला नवीन ऍड करायचे असतील त्याच्यासाठी ते ऍडऑनचं टॅब त्यांनी दिलेलं आहे. अच्छा अच्छा. ठीक आहे. ओके मॅम. थँक्यू. ओके. थँक्यू. चला बंद करायचं आजचं सेशन. Okay, so we will meet on tomorrow at 7:15. ठीक है. Now I am ending the meeting. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Good day. Bye bye. 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 बंद कर.